Hello students, welcome to the next lecture of light, reflection and refraction, and here in this lecture we will discuss about spherical mirror. So here is spherical mirror. As we know that spherical mirror is a part of a hollow sphere. Clear? It is a part of a hollow sphere. Here we are going to discuss about different types, that is concave and convex mirror, and the terms related to the spherical mirror. So first of all we have to study about the terms related to spherical mirror. Terms related to spherical mirror. Firstly, I am drawing a spherical mirror, concave and convex mirror. So here is, this is the concave mirror, and we know that the concave mirror is polished at outside. Clear? This is the principal axis of the mirror. This is x dash, it is the principal axis. M dash is the mirror. This point is called as pole. Here is focus, and this is center of curvature. Clear? So this is the spherical mirror. Which type of mirror it is? It is a concave mirror. This is a concave mirror. And here I am drawing about convex mirror. So this is the convex mirror. The convex mirror is polished at inner side. So this is the polished side of the mirror. And here is the principal axis. This point is called as P. This is x and x dash. This is M and M dash is the mirror. Here is F and here is C. And this is the type of convex mirror. Now we have to discuss about the different terms which are related to the mirror, spherical mirror. First of all, we are going to study about the pole. What is the pole? P is the pole. Now what is the definition of the pole? This is the center of the reflecting surface of spherical mirror. Clear? This is the spherical mirror and this is the center of this reflecting surface. This spherical mirror is the reflecting surface. So pole is, here I am writing the definition. Pole is center of reflecting surface in both the types of mirror. So this is reflecting surface. Next one is, nextly we have to study about, this is the pole, and next one is what is C or center of curvature. C is center of curvature and this is the center of the spherical mirror. So central of curvature is the center of that hollow part of the mirror from which the piece is taken. So this is the center of spherical mirror. This is called as center of curvature. And what is the definition of center of curvature? It is the center of hollow part of mirror. Clear? So the center of curvature is the center of that hollow part of the mirror from which the spherical mirror is formed. Clear? So this is the center of curvature. Next one is radius of curvature. What is radius of curvature? The distance between pole and center of curvature.
it is called as radius of curvature. We know that this is a sphere and this is the center of this sphere. What is the radius? The distance between center to the periphery or the circumference. This is called as radius. So this is the radius of curvature. So nextly I am writing the definition of radius of curvature. Next one is radius of curvature. It is denoted by R. Clear? And it is the distance between P and C. So it is distance between pole and center of curvature. This is called as radius of curvature. Nextly, we are going to discuss about principal axis and firstly the radius of curvature. What is radius of curvature? This is the radius of curvature. Next one is principal axis. What is the principal axis? X and x dash is the principal axis. This is an imaginary line which is passing through the center of curvature, pole and focus of the mirror. Clear? This x and x dash is an imaginary line है ना, ये एक imaginary line है जिसे हम draw करते हैं and this line should be passes through the center of curvature, focus and pole of the mirror. So this imaginary line is called as principal axis. So the next definition is principal axis, which is the x and x dash, and it is an imaginary line. So here is principal axis. Here it is x dash and it is imaginary line which passes through center of curvature, focus and pole of the mirror. This is called as principal axis. Next one is aperture. M dash is the aperture. It is nothing but it is the diameter or size of the spherical mirror. So this M dash is the aperture. So what is aperture of mirror? Aperture of mirror, it is diameter or size of the mirror, and here it is denoted by M dash and it is as small as possible. ठीक है, इसे हम एकदम छोटे से छोटा लेते हैं तो अपर्चर क्या होता है, सबसे छोटा पार्ट है ना, बहुत छोटा सा पार्ट होता है. यहाँ पे तो हमने दिखाने के लिए इसको बड़ा ड्रॉ किया है. इट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द मिरर. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल फोकस, एफ. क्लियर? सो व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? Principal focus is a point on the principal axis through which the reflected rays are meet or appears to be meet. Here, what is principal focus? It is basically denoted by F and it is the point on principal axis at which the reflecting rays meet after reflection from mirror, after
reflection from mirror or appears to be meet. It means प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस वो पॉइंट है जहां पर रिफ्लेक्टिंग रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद मीट होती है. इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर हमें एक्चुअल मीटिंग दिखाई देंगी, और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर दे आर अपीयर्स टू बी मीट. ना किस तरह से, हियर आई एम ड्रॉइंग द लाइंस. दिस इज द इंसिडेंट रे. आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट passes थ्रू द focus. This one is also an incident ray, and after reflection from the mirror it also passes through the focus. So that point at which these lines are actually meeting, this is the focus. In case of convex mirror, what will happen? In case of convex mirror, the line which comes parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये वाला, इसका बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. एंड इट इज द डाइवर्जिंग मिरर. तो यहां पर लाइट रेज क्या होंगी, रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ट होंगी. हियर ऑल्सो दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. अब ये दोनों रेज, रिफ्लेक्टिंग रेज, यहाँ पे तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो रही है, मीट कर रही है इस पॉइंट पे. अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज क्या कभी मीट करेंगी, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे दूर जा रही है तो ये कहीं भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी. बट यदि हम इनको मिरर के पीछे की साइड बढ़ाएं, ठीक है, तो ये हमें जिस पॉइंट पे मीट करती हुई दिखाई दे रही है, दैट पॉइंट इज द फोकस. ठीक है, इमेजिनरी ना, इसकी जो इमेज बनेगी दैट इज वर्चुअल इमेज ना. यहाँ पे जहां ये मीट करेंगी, जहां पे भी दोनों रिफ्लेक्टिंग रेज आपस में मीट करती है, दैट इज द पॉइंट एट विच द इमेज इज गोइंग टू फॉर्म्ड. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हमें मीट करती हुई दिखाई दे रही है, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग. सो दिस इज द पॉइंट विच इज कॉल्ड एज फोकस. क्लियर? सो दीज आर द important terms. One more term is there that is called as focal length. What is focal length? Focal length is the distance between pole and focus. Next term is focal length, and this focal length is denoted by small f. Capital F is for focus and small f is for focal length. And what is the focal length? It is the distance between pole and focus. Okay, this is called as focal length, and it is always half than the radius of curvature. Focal length is always half than radius of curvature. Clear? इसको हम प्रूव करेंगे अभी. नेक्स्ट, कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर ना. इसको हम कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज है दे आर गोइंग टू बी एक्चुअली मीट. रिफ्लेक्टेड रेज क्या होंगी, एक्चुअली मीट करती है, तो ये आपस में उन रेज को कन्वर्ज करता है, एक जगह इकट्ठा करता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर. एंड कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, रेस को डाइवर्ट करता है, दूर भेजता है. ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर. क्लियर? सो दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर. नाउ वन डेरिवेशन इज देयर. व्हाट इज द डेरिवेशन? टू प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस देन द फोकल लेंथ. अभी मैंने बताया फोकल लेंथ जो होता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस देन द फोकल लेंथ. इसको हमें प्रूव करना है. सो वी हैव टू प्रूव दिस. तो हमारे पास एक डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे. टू प्रूव दैट हियर इज टू प्रूव दैट radius of curvature
is twice than focal length. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? फोकल लेंथ की डबल होती है. इसको हमें प्रूव करना है. या यदि हम बोले कि टू प्रूव दैट फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है? r इज इक्वल टू 2f, ये प्रूव करें हम, या हमें प्रूव करना है f इज इक्वल टू r बाय 2. तो ये चीज हमें प्रूव करनी है. ठीक है, दोनों में से कुछ भी पूछे, सेम डेरिवेशन हमें करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्रूव ऑल ऑफ दीज थिंग्स. दिस इज द concave mirror. This is concave mirror. Now I am going to draw principal axis. So this is the principal axis named as x, x dash. Now the points on principal axis, this is pole, this is focus, this is center of curvature. Clear? And the part which is used, the part of mirror which is used is the aperture of mirror. ठीक है, this is as small as possible. बहुत छोटा सा पार्ट हम इसका लेते हैं. सपोज हम यहाँ से, नहीं ये तो बहुत बड़ा हमने ड्रॉ किया है एक्सप्लेनेशन के लिए. सपोज मैंने यहाँ से एक छोटा सा पार्ट लिया, इतना सा पार्ट. ठीक है, तो ये इतना सा पार्ट क्या है? इसका अपर्चर है ना, मिरर का अपर्चर. अब हमें यहाँ पे एक रे इंसिडेंट करनी है. सो दिस इज द इंसिडेंट रे. ठीक है, सपोज ये पार्ट है मेरे पास मिरर का, ये बहुत छोटा हमें लेना है. एक्सप्लेन के लिए मैं इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रही हूँ. सपोज दिस इज द इंसिडेंट रे, इट इज ए एंड बी. आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इट पासेस थ्रू द फोकस. सो दिस इज द reflected ray which passes through the focus and it is B. Okay, this is the focus. Next we are going to draw an imaginary line which is called as normal. So we have to draw a normal here. What is the normal? This is the normal. This dotted line is an imaginary line which represents the normal. The angle between incident ray and normal, this angle is angle of incidence I, and the angle between normal and reflected ray is angle of reflection, that is R. ठीक है, ये हमने जो लाइन ड्रॉ की है, दिस इज द इमेजिनरी लाइन विच इज कॉल्ड एज नॉर्मल. और नॉर्मल क्या होता है? मिरर के परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं. क्लियर? तो ये हमारे पास मिरर के परपेंडिकुलर. स्पेशली आप इतना ध्यान रखिए, सपोज ये मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर. ठीक है, ये स्फेयर है और इसी का एक पार्ट क्या है? स्फेरिकल मिरर है. यहां से इसका सेंटर है. इस सेंटर पे आप कहीं भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो क्या है? इसका नॉर्मल. ठीक है, सपोज मैंने ये वाला पार्ट लिया है मिरर का, तो दिस इज द परपेंडिकुलर दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल. सो सेंटर से इसके जो सर्कमफ्रेंस है, यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज द नॉर्मल. सो ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इमेजिनरी लाइन, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल. चलिए अब हमें ये चीज को प्रूव करना है. इस चीज को प्रूव करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं ये बता देती हूँ आप लोगों को. P इज पोल, F इज फोकस, C इज सेंटर ऑफ curvature. Clear? Now what is x dash is principal. It is principal axis. AB is incident ray. This is incident ray. BD is reflected ray. It is reflected ray. One more thing, that is this one, FP या PF.
PF is focal length and PC is radius of curvature. PC is radius of curvature. Clear? So these are the abbreviations which are used for all of these terms. Clear? अब हमें प्रूव करना है इसको, तो हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं. ये मैं यूज कर देती हूँ. डायग्राम से हमें दिख रहा है AB is parallel to XX dash. Clear? Here AB is parallel to XX dash. ठीक है, तो जब AB इसके पैरेलल है तो जो BD रिफ्लेक्टिंग रे है इट पासेस थ्रू द फोकस. सो BD passes through focus ना, क्योंकि हमारे पास जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है मिरर पे, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके गुजरती है, तो ये फोकस से होके जाएगी. Here angle I is equal to angle R. Why these are equal? This is equal due to law of reflection. ना, रिफ्लेक्शन के लॉ से हमें पता है एंगल I और एंगल R की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है. नाउ AB is parallel to XX dash. ये AB और XX dash एक दूसरे के पैरेलल है. दिस इज AB एंड दिस इज XX dash. यहाँ पे जो ये रे आ रही है दैट इज नॉर्मल जो है, दिस इज द नॉर्मल. क्लियर? तो यहाँ पे एक Z जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए यहाँ का एंगल और यहाँ वाला एंगल, ठीक है, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल. बाय दीज आर अल्टरनेट एंगल. ठीक है, ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल. ठीक है, तो ये क्या है, एंगल I. हियर एंगल I इज इक्वल टू एंगल BCP इज इक्वल टू एंगल, ना ऐसे लिखती हूं मैं, एंगल BCP is equal to angle I. This is equation number 2. Why these are equal? Because these are the alternate angles. Okay, so these are the alternate angles. That's why these are equal. Okay, ये चीज हमें समझ में आ गई. अब हमें समझ में आया एंगल I is equal to एंगल R. ठीक है, ये हमें पता है एंगल I is equal to एंगल R. सो जब BCP एंगल I के इक्वल है तो ऑब्वियसली ये एंगल R के भी इक्वल होगा, क्योंकि एंगल I और R क्या है, दोनों इक्वल है. सो हियर BCP इज इक्वल टू एंगल R ऑल्सो. एंगल I के इक्वल है और एंगल I किसके इक्वल है, एंगल R के इक्वल है. क्लियर? तो ये हमें समझ में आ गया. नाउ वी आर कंसिडरिंग अ ट्रायंगल. विच ट्रायंगल? यहां पे हम एक ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल BCF. दिस इज द ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल, जस्ट दिस इज द ट्रायंगल एंड दिस इज ट्रायंगल BCF. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. एंगल I इज इक्वल टू एंगल BCP. ठीक है, जब ट्रायंगल में दोनों साइड के एंगल इक्वल होते हैं तो इन दोनों के साइड की जो साइड्स हैं दीज आर ऑल्सो इक्वल. दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस. क्लियर? तो ये क्या हुआ हमारे पास, जब आमने सामने के एंगल्स इक्वल है तो आमने सामने की साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी. इट मीन्स इन ट्रायंगल BCF, what is this? BF is equal to FC. Here, so here I am writing this thing. This one is BF is equal to FC. This is equation number 4 ना, क्योंकि दोनों आमने सामने के एंगल्स इक्वल है तो साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी. अब हमें देखना है फॉर स्मॉल अपर्चर ना, हम मिरर का क्या हिस्सा यूज करते हैं, स्मॉल अपर्चर. स्मॉल अपर्चर के लिए क्या होगा, फॉर
स्मॉल अपर्चर। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है दैट इज BCP ना, जो ये यहाँ पे बन रहा है BCP, क्योंकि ये क्या है, here is BCP, this is the triangle BCP, this is the aperture है ना, ये BP क्या है, इसका अपर्चर है, और ये अपर्चर क्या होना चाहिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये वाला साइड क्या है, हाइपोटेनियस, सबसे बड़ा साइज होता है, साइड होता है ये ना, हाइपोटेनियस का साइज क्या है, बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। लेकिन जब हम इस परपेंडिकुलर को कम कर देंगे, क्योंकि हमें अपर्चर क्या चाहिए, एकदम शॉर्ट ना, ये इतना बड़ा अपर्चर भी हमने डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए किया है, हम यदि इस अपर्चर के साइज को छोटा कर देते हैं ना, सपोज दिस इज द बेस, दिस इज द हाइपोटेनियस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर। आपने क्या किया, अपर्चर के साइज को छोटा कर दिया। जब हम अपर्चर के साइज को छोटा करते हैं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब हाइपोटेनियस जो है वो बेस के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये BCP, तो इसमें क्या है, BC इज इक्वल टू PC। क्लियर, क्या देख रहे हैं आप, फॉर स्मॉल अपर्चर जस्ट नॉट P, here is F है ना, हम ये वाला ट्रायंगल देखते हैं F वाला, सो here is F। ठीक है, तो क्या हो रहा है, BC इज इक्वल टू CF। क्लियर, BF इज इक्वल टू FC, ये जो है हमारे पास क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया, तो BF क्या हो गया, FC के इक्वल। क्लियर, सो BF इज इक्वल टू PF, BF इज इक्वल टू, हाँ ये वाला ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं, BFP, नॉट दिस, BFP ना, दिस ट्रायंगल वी आर कंसीडरिंग, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल वी आर कंसीडरिंग, सो BFP, तो यहाँ पे क्या हो गया, BF इज इक्वल टू PF। सो फॉर स्मॉल अपर्चर BF इज इक्वल टू PF, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ऊपर हम देख रहे हैं BF FC के भी बराबर है, ठीक है, और यहाँ पे BF PF के भी बराबर है, इसका मतलब PF और FC भी क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। सो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 व्हाट विल हैपन, फ्रॉम 4 and 5 ये दोनों इनके इक्वल है, तो यहाँ पे PF और FC भी क्या हो गए, इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। नाउ व्हाट विल हैपन, PF इज इक्वल टू FC। ठीक है, PC को मैं कैसे लिख सकती हूं, PC को यदि मैं ऐसे लिख दूं, PC इज इक्वल टू, PC को हम लिख सकते हैं PF प्लस FC। ठीक, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। ये जो PC है, दिस PC कैन बी रिटन एज PF प्लस FC, तो PF प्लस FC में इसको लिख सकती हूँ। नाउ दिस PC, ये FC PF के बराबर है, ठीक है, FC किसके बराबर है, PF के बराबर है, ये रहा PF की इक्वल है, तो PF तो यहाँ है, तो मैं इस FC को यदि एक बार और PF लिख दूं तो कोई गलत थोड़ी ना होगा, ठीक है, क्योंकि FC इज इक्वल टू PF। नाउ व्हाट विल हैपन, क्लियर, इतना हमारे पास आ गया। अब क्या है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज PC, PF प्लस PF इज 2PF। व्हाट इज PC, PC इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो इट इज R and R is equal to 2PF. What is PF? PF is focal length. Yeah. So R is equal to 2F. ये हमारे पास प्रूव हो गया. So here it is hence proved. Next इसको प्रूव करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, F is equal to R upon 2. So this will also proved.
तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस देन द फोकल लेंथ और फोकल लेंथ इज हाफ देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर. दिस इज गेटिंग प्रूव्ड. क्लियर. तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा. In our next lecture, we will discuss about the image formations and rules of image formation from spherical mirror. Thank you very much.